السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں فائر موک ڈرل کی گئی۔ صبح ہونے والی موک ڈرل میں آگ لگنے کے کسی بھی حادثے کی صورت میں فوری طور پر اٹھائے جانے والے اقدامات، آگ بجھانے والے آلات کے استعمال اور دیگر مسائل کے بارے میں بتایا گیا۔ سیکریٹریٹ CSO دیوی داس، اسسٹنٹ کمانڈنٹ اپاجی پون کمار، ADFO GV پرساد، SFO جنیا کے ساتھ تقریباً 100 TGSPF افسران اور سیکریٹریٹ کے عملے نے شرکت کی اور سیکریٹریٹ میں پون کمار، اسسٹنٹ کمانڈنٹ GV پرساد کے علاوہ دیگر موجود رہے، جنہوں نے اس دوران کئی بریفنگ بھی دی ہے۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ BRS کے سینئر لیڈر شیخ عبداللہ سہیل نے BRS MLA کوشک ریڈی کے ریمارکس پر تنازعہ پیدا کرنے پر کانگریس قائدین کی سخت مذمت کی اور الزام لگایا کہ وہ جان بوجھ کر انہیں فرقہ پرست لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوشک ریڈی نے ہمیشہ سیکولر نقطہ نظر کو برقرار رکھا اور کبھی بھی مذہبی سیاست میں ملوث نہیں ہوئے۔ سہیل نے مزید کہا کہ کوشک ریڈی کی جانب سے فوری اور عوامی معافی مانگنے کے باوجود غصے میں کیے گئے ایک ریمارک کو بے بنیاد قرار دیا جا رہا۔ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں جن کو آرینز کہتے ہیں، اور اسی طرح مسلمان ترکی سے آئے بلکہ توکو بولتے ہیں۔ ڈاکٹر بالمور وینکٹ MLC نے گاندھی بھون میں ایک میٹنگ منعقد کی اور اس موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب KTR بے روزگاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسی شخص کے ساتھ تعزیت کرنے واپس آئے ہیں جنہوں نے انہیں مارا۔ جب آپ اقتدار میں تھے تو بے روزگاروں سے ملاقات کا وقت بھی نہیں دیتے تھے، اب جب ان کی بات کر رہے تو ایسا لگتا ہے جیسے شیطانوں نے وید پڑھنا شروع کر دیا۔ عوامی حکومت کے راج میں بے روزگاروں کے ساتھ انصاف کیا جا رہا۔ اب تک ہم نے 70,000 نوکریاں بھری ہیں اور تقرری لیٹر جاری کیے ہیں۔ حکومت نے مزید نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ روڈ سیفٹی کے عہد کی ویب سائٹ کو وزیر ٹرانسپورٹ اور BC ویلفیئر نے سیکریٹریٹ میں شروع کیا۔ یہ تلنگانہ میں سڑک کے ذمہ دارانہ رویے کی ثقافت کی تعمیر کی طرف ایک اہم قدم۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا مقصد شہریوں اور والدین کی حوصلہ افزائی کرنا کہ وہ سڑک کی حفاظت کے لیے شعوری طور پر عزم کریں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ جان بچانا ایک مشترکہ ذمہ داری اور یہ کہ محفوظ عادات گھر سے شروع ہوتی ہیں اور ہر سڑک پر جاری رہتی ہیں۔ انہوں نے ریاست بھر میں سڑک استعمال کرنے والوں میں نظم و ضبط، بیداری اور ذمہ دارانہ رویے کو فروغ دینے کے ویژن کا اعادہ کیا۔ شہری ٹریفک قوانین پر عمل کرنے اور سڑک پر چلنے والی ہر زندگی کا احترام کرنے کا شہری عہد لے سکتے ہیں۔ والدین کے عہد کو مثال کے طور پر لے کر اپنے بچوں میں محفوظ عادات کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ یہ اقدام یاد دلاتا ہے کہ سڑک کی حفاظت صرف نفاذ کے بارے میں نہیں بلکہ خاندانوں، بچوں اور تلنگانہ کے ہر ساتھی شہری کے لیے ایک اجتماعی وعدہ ہے۔ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ ఇనపర్తి గారు మరి మా STA మెంబర్ ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రతిజ్ఞ రాబోయే కాలంలో యాక్సిడెంట్లను తగ్గించడానికి, ప్రాణాలు రక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తా ఉన్నాం। ప్రతి పిల్లవాడు, విద్యార్థి, తల్లిదండ్రి آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے جنرل سیکرٹری، سینئر قائد اور سابق رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کا منگل 3 فروری کو اویسی ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ وہ 72 سال کے تھے۔ ان کے انتقال سے سیاسی حلقوں بالخصوص مجلس اتحاد المسلمین میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق سید احمد پاشا قادری کو
30 नवंबर को तबीयत अचानक बिगड़ने पर कंचन बाग में वाक़ ओवैसी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जहां वो गुज़िश्ता कई हफ्तों से ज़ेर इलाज थे। मौलजीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 2 बरसों से गुर्दों के शदीद आरिज़े में मुब्तला थे और मुसलसल तिब्बी निगरानी में थे। मरहूम का शुमार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन रहनुमाओं में होता था जिन्होंने पार्टी की बुनियादों को मजबूत करने में नुमायां किरदार अदा किया। उन्होंने कई दहाइयों तक पार्टी से वाबस्तगी निभाई और 2004 से 2023 तक मुसलसल अवामी नुमाइंदे की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो एक तजुर्बेकार सियासतदान थे और अवामी मसाइल को ऐवान में मौसर अंदाज में उठाने के लिए जाने जाते थे। अपने तवील सियासी सफर के दौरान सैयद अहमद पाशा कादरी ने हलके की तरक्की, अवामी फलाह व बहबूद और अक़लियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल ज़िक्र खिदमत अंजाम दी, जिसकी वजह से वो अवाम और कारकुनान में खास मुकाम रखते थे। उनके इंतकाल पर असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी कायदीन, कारकुनान और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन से मुतल्लिक़ तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल न सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्कि रियासती सियासत के लिए भी एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया जा रहा। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और अहले खाना, पार्टी क़यादत और चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब से कुछ ही देर कबल मकबूल मिल्लत अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी साहब क़िबला, जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ रुकन असम्बली का इंतकाल हो गया है। कल बाद नमाज ज़ोहर यानी 1:20 पे जामा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तदफीन मस्जिद मुहियुद्दीन बादशाह ज़रीन कुल्ला नूरखा मज़ार में अमल में आएगी। शिमला किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस एमपी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का अमल खत्म हो गया है। तेलंगाना के अवाम से अपील है कि बल्दी इंतखाबात में बीआरएस को वोट ना दें। बीआरएस किसी न किसी तरीके से बल्दियाती इंतखाबात जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर एसआईटी ने केसीआर को नोटिस दिया तो उन्होंने रियासत भर में धरने दिए। केटीआर झूठ बोल रहे, केसीआर को बाबा कौम कहते हैं। केटीआर और हरीश राव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहे। उन्होंने कहा कि हरीश राव नामी शख्स एमएलए के बगैर राजशेखर रेड्डी की हुकूमत में वजीर बन गया और लकी स्टार हरीश राव जिन्होंने वोट हासिल किए बगैर वजीर का ओहदा संभाला। हरीश राव के चचा जिन्होंने अपनी पतलून चाट कर आखिरी सांस ली, कुर्सी पर बैठकर कहा अगर वो आखिरी सांस लेंगे तो वो ओहदा संभालेंगे। रेवंत रेड्डी किसी की मदद के बगैर चीफ मिनिस्टर के दर्जे पर पहुंचे। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए एमएलसी डॉक्टर दासोजो श्रवण ने साबिक सीएम केसीआर से 5 घंटे तक जारी रहने वाली एसआईटी की पूछताछ को सियासी इंतकाम की अफसोसनाक हरकत करार दिया। एमएलए कोवल लक्ष्मी और आरएस प्रवीण कुमार के साथ आसिफाबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर दासोजो श्रवण ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मुतनबा किया कि 4 करोड़ लोगों के जज्बात से खेलना एक खास सियासी मुतज़ली का बाइस बनेगा और कहा कि डॉक्टर श्रवण ने एक तारीखी मुतवाज़ी बात करते हुए कि अगर कुमरम भीम ने जल, जंगल और जमीन के लिए जंग लड़ी थी तो केसीआर ने नेल्लू, नडुलू और न्याम कालू की जंग के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केसीआर तेलंगाना के लिए बाप की हैसियत रखते हैं। उन्होंने फलाही स्कीमों का आगाज किया जिसकी अब बाकी हिंदुस्तान नकल करता है। एमएलसी ने कांग्रेस पर 420 धोखाधड़ी के वादों की पश्त पर इख्तिदार पर चढ़ने का इल्जाम लगाया। पहले दिन उन्होंने दावा किया कि खजाना भरा हुआ, दूसरे दिन उन्होंने पुकारा कि ये खाली है, ये खाली बर्तन ड्रामा उनकी हुकूमत करने की नाअहली का एक काबिल रहम पर्दा है। उन्होंने इन बातों का तबसरा किया। ఇక్కడ మీడియా మిత్రులతో మాట్లాడటం, ప్రజలతో కలిసి మమేకమవడం అనేటువంటి చాలా సంతోషకరంగా, అదృష్టంగా నేను వ్యక్తిగతంగా భావిస్తాను, మేమంతా కూడా భావిస్తాము. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆషామాషి రాష్ట్రం కాదు. ఏ రకంగానైతే కొమరం భీమ్ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పాలక వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా జల్, జంగల్, జమీన్ అంటూ
పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేసి ఆఖరికి ఆత్మ ఈ ప్రాంత విముక్తి కోసం పోరాటం చేసినటువంటి ఒక మహానుభావుడు కొమరం భీమ్. అటువంటి కొమరం భీమ్ ను ఆదర్శంగా తీసుకొని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న మరో కొమరం భీమ్ కేసీఆర్ గారు. ఆయన జల్ జంగల్ జమీన్ అని చెప్పని నినాదంతో ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने अपने मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट MSU के जरिए डॉक्टर MCR ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MCR HRD जुबली हिल्स में हैदराबाद, बेंगलुरु और थाने के MSU अमले के 3 रोजा ज्वाइंट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया। तरबियती प्रोग्राम 5 फरवरी तक शेड्यूल शिरका से खिताब करते हुए GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने शहरी माहौल में सेहत आमा के तहफ्फुज में फ्रंटलाइन डिफेंस के तौर पर मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट्स के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि MSU के एहलकारों की बुनियादी जिम्मेदारी बर वक्त रिपोर्टिंग, तस्दीक और वबा से मुतासरा बीमारियों के लिए मुयस्सर रद्दअमल को यकीनी बनाया है। रोड सेफ्टी मुहिम अराइव अलाइव के तहत जिले पुलिस की जानिब से गाड़ी चलाने वालों के लिए एक अहम इकदाम उठाते हुए 84 ड्राइवरों में मुफ्त ऐनकें तकसीम की गई। ये ऐनकें गुज़िश्ता महीने 21 तारीख को मुनक़िदा रोड सेफ्टी माह के दौरान किए गए मुफ्त आंखों के मुआयने में बीनाई के मसाइल की निशानदेही होने के बाद फराहम की गई। जिले पुलिस दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने खुद ड्राइवरों को ऐनकें फराहम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी बीनाई महफूज ड्राइविंग के लिए निहायत जरूरी और सड़क हादसात की रोकथाम में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने खास तौर पर ऑटो, टैक्सी और दीगर कमर्शियल ड्राइवरों को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक कानून की पाबंदी को अपनी अवलीन जिम्मेदारी समझें। कई रोज से गिरावट का सामना कर रहे सोना और चांदी एक बार फिर अचानक ऊपर उठते हुए अपनी हालत सुधारते नजर आए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होने के साथ ही दोनों कीमती अशिया तूफानी तेजी के साथ मंजरेआम पर आई। इस दौरान चांदी जहां एक ही झटके में 21,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई, वहीं सोने की कीमत में भी 5,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया। बता दें कि 5 मार्च के मियाद खत्म होने वाली चांदी 2,36,261 रुपए फी किलोग्राम पर बंद हुई थी और कारोबार शुरू होते ही इसकी कीमत 2,57,480 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गई। चांदी की कीमत तकरीबन 2,25,000 रुपए फी किलोग्राम तक गिर गई थी, लेकिन इसमें तेजी बहाल होती नजर आई। तेजी के बावजूद चांदी अब भी अपनी अब तक की बुलंद तरीन सतह से काफी नीचे है। 29 जनवरी को चांदी पहली बार 4 लाख रुपए फी किलोग्राम के निशान को अबूर करते हुए 4,30,048 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। इस हिसाब से मौजूदा कीमत अभी तकरीबन 1,62,568 रुपए कम है। चांदी के साथ साथ सोने की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखने में आई। MCX पर सोना 1,43,991 रुपए फी 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो इब्तदाई कारोबार में 1,49,485 रुपए फी 10 ग्राम पहुंच गई। इसका मतलब है कि 24 क़िरात सोना एक ही दिन में तकरीबन 5,494 रुपए महंगा हो गया। इसी तरह सोने की मौजूदा कीमत भी अपनी लाइफ टाइम हाई से काफी कम है। MCX पर 2 अप्रैल एक्सपायरी डेट वाले सोने की बुलंद तरीन सतह 1,93,096 रुपए फी 10 ग्राम रही, जहां वो 29 जनवरी को थी और तेजी के बाद भी सोना अभी भी अपनी रिकॉर्ड सतह से तकरीबन 43,611 रुपए नीचे है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए हिंदुस्तान पर आयद किए गए टैरिफ को कम करके 18% करने और तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक का बराह रास्त असर हिंदुस्तानी शेयर बाजार पर पड़ा। बाजार खुलते ही जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली और सेंसेक्स 3,200 से ज्यादा पॉइंट्स की छलांग लगाकर 85,323 की सतह पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 1200 पॉइंट से ज्यादा उछाल के साथ 26,308 पर कारोबार करता नजर आया। इब्तदाई कारोबार में सेंसेक्स 3,656.74 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 85,323.20 और निफ्टी 1,219.65 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ 26,308.5 पर पहुंच गया।
टैरिफ में कमी और तिजारती मुआहदे की खबर से सरमायाकारों का जोश व खरोश वाज़ेह तौर पर नजर आया। रिलायंस और अडानी समेत कई बड़ी कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। अडानी पोर्ट्स के शेयर में तकरीबन 6.9% तक इजाफा हुआ, जबकि रिलायंस के शेयर में तकरीबन 4% तक का इजाफा देखने को मिला। वाज़ेह है कि इससे कबल बजट वाले रोज आने वाली बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने दोबारा मजबूती हासिल की थी। तेल, गैस, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयर्स में खरीदारी की वजह से सेंसेक्स 943 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 81,666 पर बंद हुआ था। मगरिबी तलातम के फाल होने से शुमाल मगरिब में मौसम फिर खराब हो गया। मगरिबी हिमालयी इलाकों में बालाई इलाकों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं और कोहरे का सामना करना पड़ा। हालांकि दर्जे हरारत में कदर इजाफा हुआ, लेकिन सर्द लहर ने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। इन इलाकों में बारिश, बर्फबारी और सर्द लहर की सूरत हाल मुतवक्का है। कुछ इलाकों में 5 फरवरी तक शदीद कोहरे का इम्कान। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, मशरक़ी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शदीद कोहरा छाया रहा, जिसमें हद बसारत 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में सरसावा, आगरा और हिंडन हवाई अड्डों पर हद बसारत 0 दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी भी हुई। मैदानी इलाकों में उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मशरक़ी राजस्थान में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी और कुल्लू, लाहौल और चंबा के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई। मानीकरण के तोश में सब्जी लेकर जा रही जीप फिसल कर बर्फ पर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। अटल टनल को शदीद बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया। रोहतांग पास पर भी 90 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ी। उधर पंजाब और हरियाणा में कम से कम दर्जे हरारत में मामूली इजाफे के बावजूद सर्द लहर बरकरार है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।